On in the theme of offering a body as a living sacrifices. अपना विषय है कि अपने शरीर को एक जीवित बलिदान करके चढ़ाने को हम आगे जारी रखेंगे. We look at different parts of our body which we all have to offer to the Lord. हम अपने शरीर के हर एक अंग को देखते हैं जो हमें प्रभु को समर्पित करना है. When we began the study a few weeks back, I had mentioned that the practical expression of offering a body living sacrifice is specified in Romans 6:13. और हमने देखा था कि हम कई हफ्तों से इस बात को देख रहे हैं कि एक तरीके से पूरे तरह को अपने शरीर को समर्पित करना जो है वो हम देखते हैं रोमियो 6:13 में. Do not offer the parts of body to sin as instruments of wickedness. और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो. Or offer yourselves to God as those who brought from death to life. और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो. And offer the parts of body to Him as instruments of righteousness. और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो. We look at different parts of our body to offer to God. और हम शरीर के अलग-अलग अंगों को देख रहे थे जिसे हमें प्रभु को समर्पित करना है. We spoke about the eye. हमने आंखों के बारे में देखा. The ear. कान के बारे में देखा. The feet. पैरों के बारे में देखा. The tongue. जीभ के बारे में देखा. Earlier we spoke about the mind and the heart. और उससे पहले हमने मन और हृदय के ऊपर भी देखा. And today we're going to look at hands. आज हमें हाथों के बारे में देखेंगे. Now hands basically refer to the work that we do. और हाथ जो है जो हम काम करते हैं उसको बताता है. With the hands we work. अपने हाथों से हम काम करते हैं. And it's symbolic of the work we do in this world which God has called us to do. और जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमें संसार में करने के लिए बुलाया है उसमें हमारी मदद करते हैं. David was called to be a king. दाऊद को बुलाया गया था कि वो एक राजा बने. And in Psalm 78, when Asaph wrote that psalm, he records the history of Israel in a nutshell in one particular psalm. और भजन 78 में आसाफ ने जो भजन लिखा है वो इजराइल का जो इतिहास है उसको इसमें बताता है. Recording the history of Israel, finally in the last verse, 72nd verse, he writes. और आखिरी आयत जो है 72वीं आयत उसमें वो लिखता है. And David shepherded them with integrity of heart. अब उसने खरे मन से उनकी चरवाही की. With skillful hands he led them. और अपने हाथ की कुशलता से उनकी अगुवाई की. Skillful hands. So in other words, with the hands we work, and God wants us to work with skillful hands, whatever we do. और जो हमारे हाथ हैं इनसे हम काम करते हैं और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हाथों को कुशलता से उसका काम करें. God wants His people all to be excelling in whatever we do. परमेश्वर चाहता है उसके लोग जो भी करें वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करें. We are called to be excelling in the work that we do. और हमें बुलाया गया कि हम जो काम करते हैं वो सबसे बढ़िया तरीके से हो. I'll first talk about our calling in the world, the secular world. और हमें इस संसार में जो हमारे को बुलाहट जो है उसको हम देखते हैं. The work in the marketplace, which you call to do the professional work. और जो हम जो बाजार में या जिस काम के से हम अपनी रोजगारी कमाते हैं उस काम को हम देखते हैं. We'll talk about the role of the hands, the physical hands in the ministry. और फिर हम अपने शारीरिक हाथों को देखते हैं जो सेवकाई में हम करते हैं. First of all, we need to be people who, whatever work we do unto God. और जो भी हम काम करते हैं वो हम परमेश्वर के लिए करें. In Colossians chapter 3, verse 23 and 24, we read. कुलुस्सियों 3 अध्याय 23 और 24वें आयत में हम पढ़ते हैं. To the slave in Colossae, Paul writes. और कुलुस्सियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हैं. Whatever your task, work with all your heart. जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो. As working for the Lord, not for men. यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो. Knowing you receive the inheritance from God the reward. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इस काम बदले प्रभु की मिरास मिलेगी. It's the Lord Christ you are serving. तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो. So simply working for God in whatever work we do, we are called to excel in it. तो हमें जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, जिस काम के लिए बुलाया है, उसको हमें एकदम निपुणता से करना है. There's no place for mediocrity in God's kingdom. परमेश्वर के राज्य में कोई आधा काम करने वाला बीच का रास्ता नहीं है. And therefore, while we live in this world, whatever our calling is, we are called to excel in it. और इस संसार में जो भी हमारी बुलाहट है, जो इस काम के लिए बुलाया गया है, उस काम को हमें बहुत अच्छे से करना है. We should not be dividing our life into compartments. हमें अपने जीवन को हिस्सों में नहीं बांट देना है. Spiritual life, आत्मिक जीवन, home life, घर का परिवार का जीवन,
social life, समाज का जीवन, professional life. अपने काम धंधे का जीवन. We shouldn't make it into compartment. In every compartment, we should work as if we are serving for God, serving God. तो हमें अपने जीवन को इन अलग-अलग हिस्सों में अपने जीवन को नहीं बांटना. हमें जो भी भाग में हम हैं, उसको हमें ऐसे करना है कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं. And for us to be effective in our workplace, there are at least 3 requisites God wants from us. और अपने जो भी हम काम करते हैं, उसमें 3 चीजें हैं जो परमेश्वर हमसे आशा रखते हैं. Honesty, ईमानदारी, efficiency, बड़ी अच्छे से करना, बिना गलती के करना, and hard work. और मेहनत से करना. Now, honest work is something that we cannot teach people. It's between them and God, to be honest before God. और ये ईमानदारी जो है, ये हम इसको सिखा नहीं सकते. ये तो परमेश्वर और उस व्यक्ति के बीच में एक बात है. We can be examples to them, but we can't make them be honest. हम उनको उदाहरण बन सकते हैं, पर उनको जबरदस्ती हम उनको ईमानदार नहीं बना सकते. We are called to be people of integrity. हमें बुलाया गया है कि हम अपने बिल्कुल एकदम ईमानदार लोगों की तरह काम करें. Integrity is reflected in the way we work in our offices, in our workplace also. और हमारी ईमानदारी दिखाई देती है जिस तरीके से हम जिस काम में काम कर रहे हैं, हम उस तरीके से किस तरह से काम कर रहे हैं, उससे प्रकट होती है. And in 2 Corinthians 2:17, Paul writes, unlike so many, we don't peddle the word of God for profit. और दूसरा करंथियों 2:17 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हम उन बातों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं. On the other hand, we speak before God with sincerity like men sent from God. परंतु मन की सच्चाई और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं. And God wants integrity. He wants honesty in the heart. और परमेश्वर चाहता है कि हमारे मनों में ईमानदारी और सच्चाई हो. So the way we work with our hands, it has to be honest, efficient work, honest work. Efficiency comes from God. और जो भी काम करते हैं, हमारे को ईमानदारी से करना, और जो हम कितने निपुणता से कर रहे हैं, ये परमेश्वर की ओर से मिलता है. Skills come from the Lord. जो गुण है काम करने की, जो अच्छी जो हमारे को जो दान है, वो परमेश्वर से मिलता है. God uses people to train us, but the source of all good things is God Himself. परमेश्वर हमें लोगों को प्रयोग करता है कि हमें सिखाएं, पर सारे जो उसका स्रोत है वो परमेश्वर खुद है. In fact, the Holy Spirit anoints us to be efficient in our work. परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा जी हमारे को अभिषेक करती है कि हम उसके काम को अच्छे से करें. In the book of Exodus, 31st chapter, the first 3 verses, we read about how Bezalel was a man who was a craftsman, and he was skilled in craftsmanship because he was filled with wisdom from the Spirit of God. और हम निर्गमन 31वें अध्याय उसकी पहली 3 आयतों में पढ़ते हैं कि वहां जो उरी का पुत्र बेसलेल है, वो बड़ा एक परमेश्वर से उसको दान मिला हुआ था, बुद्धि और प्रवीणता और ज्ञान उसके पास थी. And was given by the Spirit of God. He was filled with the Spirit of God. और उसको परमेश्वर की आत्मा से ही मिला था. Filled with the Spirit of God with skills in all kinds of craftsmanship. और उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों को समझ देने वाली आत्मा से परिपूर्ण करता. So we want to work efficiently in our office. Ask God, the Holy Spirit, anointing for us to be efficient and hardworking and do the work correctly and in quick time. Don't waste time. तो जब ऑफिस में होते हैं, कहीं पे भी होते हैं, परमेश्वर से दान मांगना चाहिए, बुद्धि मांगनी चाहिए, प्रवीणता मांगनी चाहिए कि हम जो भी काम करें अच्छे से करें, निपुणता से करें और सही समय पे करें. Now the anointing of the Holy Spirit teaches us all things. और परमेश्वर का आत्मा जो हमें अभिषेक देता है, वो ये सब चीज हमें सिखाता है. 1 John 2:27 talks about how the anointing will teach us all things. पहला यूहन्ना 2:21 में लिखा है, 27 में, 27 में कि परमेश्वर का आत्मा हमें सब बातें सिखाता है. The anointing will teach you all things. परमेश्वर का अभिषेक जो है वो हमें सब बात सिखाता है. So please don't think Holy Spirit only knows the Bible. और रिपीट ब्रदर. Please don't think Holy Spirit only knows the Bible. और ये ना सोचें कि पवित्र आत्मा जी जो है वो ही बाइबल जानते हैं. He knows everything. वो सभी कुछ जानते हैं. He will give us the efficiency to work in our offices to glorify God and be a blessing to the organization. वो हमारे को हमारे ऑफिस में सब काम करने के लिए बुद्धि, समझ, प्रवीणता देंगे ताकि हम सब काम निपुणता से कर सकें. He'll anoint our hands to be efficient to do what we have to do. और हमारे हाथों का अभिषेक देंगे कि ताकि हमें जो करना है वो हम कर सकें. And therefore, let's depend upon the Lord, not on our own strength and wisdom. और हम परमेश्वर के ऊपर निर्भर करें, अपनी समझ, अपनी बुद्धि पे निर्भर ना हो.
Now, wisdom and strength are required for every aspect of Christian life. और मसीह जीवन में तो ये बुद्धि और समझ जो है हर पहलू में हमारी जरूरत है इसकी। Bezalel was a craftsman. He had wisdom to work and he had skills also. और बजलियल जो था वो एक कारीगर था, उसको परमेश्वर ने बुद्धि दी थी, समझ दी थी कि वो उस काम को कर सके। I told you I'm not going to teach us all things. Take for example David. हमने देखा, भाई ने बताया कि अभिषेक जो है हमें सब चीज सिखाता है। अब उदाहरण के लिए हम दाऊद को ले लें। David had this desire to build a temple in Jerusalem. दाऊद के दिल में बड़ी इच्छा थी कि यरूशलेम में परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाए। But God told him he will not build the temple. पर परमेश्वर ने उसको बोला तू मंदिर नहीं बनाएगा, His son Solomon will build the temple. कि तेरा पुत्र सुलेमान जो है वो मंदिर बनाएगा। So God did not make David the builder, but God gave David a consolation prize. He made him the architect. और दाऊद तो मंदिर को नहीं बनाया, पर परमेश्वर ने उसको एक दान दिया, एक इनाम दिया कि वो जो इमारत बनानी थी उसको सारा नक्शा और सारी चीजें बनाने वाला उसको बना दिया। In First Chronicles 28:12 it's written. और पहला इतिहास 28 की 12वीं आयत में लिखा है, David gave Solomon all the plans the Spirit had put in his mind for the temple courts, for surrounding rooms, for the treasuries. और परमेश्वर के भवन के भंडारों को, पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के जो नमूने ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उसे मिले थे, वे सब उसने दे दिए। The Holy Spirit put in the mind of David the plans, the architecture for the temple. और परमेश्वर की आत्मा ने दाऊद के मन में, उसकी बुद्धि में डाला कि कैसा ये पूरी इमारत को बनाया जाना, उसका क्या नक्शा होना है। And David gave Solomon the plans. और दाऊद ने ये नमूना जो था, जो योजना थी, वो अपने पुत्र सुलेमान को दे दी। So if you lack skills, ask God to anoint you with the skills to do your work with the hands efficiently. तो अगर हमारे में ये निपुणता नहीं है, तो हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि वो हमारे को ये गुण दे, निपुणता दे, ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर सकें। Also, we are called to be people who are hardworking. Christians should be hardworking. और हमें जो मसीह लोग हैं, हमें बुलाया गया है कि हम बड़े परिश्रम के साथ मेहनत से काम करें। And for us to be able to work hard, the Lord gives us strength. और इसलिए कि हम मेहनत से काम कर सकें, परमेश्वर हमें सामर्थ भी देते हैं। 1 Corinthians 15:10 Paul writes, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में पौलुस लिखते हैं, By the grace of God, I am what I am. क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। And grace me was not without effect. और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वो व्यर्थ नहीं हुआ। No, I worked harder than all of them, yet not I, but the grace of God working within me. परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। So God gives us what we need to fulfill the task He has ordained for us. परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर हमारे को ये दान देता है, गुण देता है, जो भी काम उसने हमारे को रखा उसको ठीक से करने के लिए। He wants all the children to be efficient in their work and to bear fruit in every good work. परमेश्वर चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से काम करें, अपने काम को निपुणता से करें और हर काम में फलवंत हो। Now let's come to the role of the hands in the ministry. अब हम हाथों के कामों को, जो सेवकाई, जो परमेश्वर की सेवकाई का काम है, उसमें हाथों का क्या काम है वो देखेंगे। I'm talking about the physical hands. हम शारीरिक हाथों की बात कर रहे हैं। Before we turn to Jesus, we were using our hands to do things which should not be doing. इससे पहले कि हम प्रभु यीशु मसीह से के पास आए, हम उन कामों को करते जो हमें नहीं करना चाहिए था। The work we are doing may not be holy work. और जो हम काम करते थे वो पवित्र काम तो नहीं थे। Now we offer the same hands to God for Him to use it for His glory and for edification of His people. अब हम इन्हीं हाथों को परमेश्वर को सौंप देते हैं ताकि वो प्रयोग करें इन हाथों का अपनी महिमा के लिए। And the Bible talks about a young man lifting up holy hands in prayer. और बाइबल कहती है कि जवान लोग अपने हाथ, पवित्र हाथों को परमेश्वर की आराधना के लिए, स्तुति के लिए उठाएं। In 1 Timothy 2:8, lift up holy hands in prayer. पहला तिमोथी 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत में कि ये पवित्र हाथों को उठाएं प्रार्थना के लिए। What's the meaning of holy hands? Hands set apart for God's work, for His service, for glorifying Him and being a blessing to people. पवित्र हाथों का मतलब है कि वो हाथ जो अलग किए हुए हैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए और ऐसे काम करें जिससे कि दूसरों को आशीष मिले। Now this thing about lifting up hands, unfortunately, has become a stumbling block in many churches. और ये हाथ उठाने वाली जो बात है, ये बहुत कलीसियाओं में तो एक ठोकर का कारण बन गया है। And somehow they think that only certain denominations lift up hands. और वो सोचने लगते हैं कि ये तो कुछ समुदाय, कुछ समूह है, तरीके की कलीसियां हैं, वही हाथ उठाते हैं। Whereas in the Bible is very, very clear in Psalm 134 verse 2,
It's written, और बाइबल में तो lift up your hands in sanctuary and praise the Lord. और भजन 134 उसकी दूसरी आयत में बड़ी सफाई से लिखा है, अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो. Hands consecrated to God, we lift up hands in the sanctuary and we praise the Lord and worship God. Worship is an integral part of the hands. और हम अपने पवित्र हाथों को जो परमेश्वर के लिए हाथ हैं उनको उठाएं और यहोवा को धन्य कहें, और ये उसी की सेवा के लिए हमारे को बुलाया गया. And therefore, let's understand that it is very, very scriptural to pray by lifting up hands. तो ये इसको याद रखें कि ये बड़ा वचन के अनुसार है कि हम अपने हाथों को उठा के परमेश्वर से प्रार्थना करें. I know in certain denominational churches, whenever people lift up hands, they say, oh, it's Pentecostal way of worshiping. और कई कलीसियों में भाई बताते हैं, देखते हैं कि जब लोग हाथ उठाते हैं तो वो कहते हैं, अरे ये तो पेंटिकोस्टल लोग हैं, ये हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे हैं. And somehow the word Pentecostal become a denomination. It's actually a number. और ये पेंटिकोस्ट जो है ये एक समुदाय को संबोधित करने लगा. वास्तव में तो ये गिनती थी. Actually, the word Pentecost in Greek means 50th. और जो पेंटिकोस्ट का मतलब है वो है 50. In Greek language, Pentecost means 50th. यूनानी भाषा में पेंटिकोस्ट का मतलब है 50. It's a 50th day after Passover when they celebrated the Feast of Harvest. और ये लांगन पर के फसह के जो है फसल का जो त्योहार बनाया जाता था, 50 दिन के बाद बनाया जाता था. There are 3 festivals for which every Jew would have to come to Jerusalem. और 3 त्योहार ऐसे थे जिसके लिए हर यहूदी को यरूशलेम में आना होता था. Feast of Tabernacles, वेदिका पर्व, Feast of Passover, लांगन पर्व, and the Feast of Harvest or Feast of Sevens. और जो है ये फसल का जो फसल कटने के वाला पर्व, ये इसके लिए आना होता था. Feast of Sevens means 7 times 7, 7 days into 7 times 7 weeks, 7 to 7, 49. और ये 7 का मतलब है कि 7 गुना 7 यानी 49 दिन के लिए. And the day after that, the 50th day was called the day of और जो Pentecost. उसके बाद 50वां दिन होता था उसको पेंटिकुस का दिन कहा जाता था. So after Christ was crucified, on the 50th day after that, when they were waiting for the anointing came upon them and they were all filled with the Spirit. और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के 50 जी उठने के 50वें दिन जब वो पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए रुके हुए थे, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन पे आया. Now this is not a denomination, it's a number. और ये कोई ये समुदाय को नहीं दिखा रहा, अलग भाग को नहीं दिखा रहा, ये तो एक गिनती है. And all the people, 120 of them waiting for the anointing, were all filled with Spirit on the 50th day after Passover. और 120 लोग जो इंतजार कर रहे थे इस आत्मा के अभिषेक का, वो सब के सब 50वें दिन पवित्र आत्मा से अभिषेक हो गए. And today when people lift up hands, they say, oh, Pentecostal, Pentecostal, Pentecostal. और आज अगर लोग हाथ उठाते हैं तो लोग कहते हैं, अरे ये तो पेंटिकुस्ट लोग हैं. It's very scriptural to lift up hands and in the sanctuary. So some denominations say, oh, don't do it in the church. Go outside and do a lift up hand, not in the sanctuary. और पवित्र स्थान में परमेश्वर के मंदिर में हाथ उठा के प्रार्थना करना, आराधना करना बिल्कुल वचन के अनुसार है. अगर लोग कहते हैं कि भाई यहाँ ना हाथ उठाओ, बाहर जाके आप हाथ उठा लो. Whereas in Psalm 134 verse 2 it says, lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. और जबकि भजन 134 की दूसरी आयत में लिखा है, अपने पवित्र हाथ पवित्र स्थान में हाथ उठाकर यहोवा को धन्य कहो. And also when you lift up hands and worship God, we have victory even over the evil one. और जब हाथ उठा के परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना करते हैं तो हमें विजय मिलती है दुष्ट के ऊपर. Lifting up hands is symbol of surrender to the Lord, total surrender to the Lord. अपने हाथ परमेश्वर के सामने उठाना मतलब हमने पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के सामने सुपुर्द कर दिया. The book of Exodus, chapter 17, 8 to 15, read about how when Joshua was fighting the war against the Amalekites. और निर्गमन 17वां अध्याय 8 से 15वीं आयत में हम पढ़ते हैं जब यहोशू अमालेकियों से युद्ध कर रहा था. And Moses was on a hill. It's a place called Rephidim actually. और रेफिदिम नाम की जगह थी और मूसा जो था वो पहाड़ी पे था. And Joshua was fighting the war against the Amalekites. और यहोशू अमालेकियों से लड़ाई कर रहा था. And Moses was lifting up hands. और मूसा अपने हाथ उठा के बैठा था. As long as Moses' hands were lifted up, the war was being won. और जब तक मूसा के हाथ उठाए रहता था तब तक वो इजरायली जीतते थे. When Moses became tired and the hands went down, they were losing the war. और जब मूसा के हाथ थक जाते थे, हाथ नीचे करता था, तब अमालेकी जीतने लगते थे. And then you find Aaron and Hur holding up Moses' hands. और फिर हम आगे देखते हैं हारून और हुर, ये दोनों ने उसके दोनों हाथों को उठा के रखा और वो विजयी हुए. Some skeptics might say that is cheating.
कुछ लोग कह सकते हैं अरे ये तो इन्होंने धोखा किया। But then they lift up hands, they're winning the war. पर जब हाथ उठा के प्रार्थना कर रहे हैं तो वो जीत रहे हैं लड़ाई को। But that's very symbolic of the fact that when we depend upon God, lift our hands to the Lord and speak, pray by the Holy Spirit, we have victory over the evil one. Our enemy is not Amalekites, our enemy is the evil one today. और ये चिन्ह के रूप में है कि जब हम अपने हाथ उठाते हैं तो एक तरह से हम इसमें अपने आप को परमेश्वर को सुपुर्द करते हैं और हम जो है दुष्ट के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। Not only that, as God's people, God wants to use their hands for healing of people. और परमेश्वर चाहता है कि हम जो है अपने हाथों को प्रयोग करें लोगों की चंगाई के लिए। We don't heal, Lord heals. हम चंगाई नहीं देते, परमेश्वर चंगा करता है। Jesus said in Mark 16:18, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16 उसके 18वीं आयत में, they will lay their hands on sick people and they will get well. कि वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। Who are they? ये वे कौन है? Look at verse 16. 16वीं आयत को अगर हम देखें, Believers. विश्वास करने वाले। The believers in Jesus, simply because we are Christian, belong to Him. God's promise, one of the ways by which God heals people is when believers lay hands on sick people and they'll get well. और जब जो विश्वासी लोग हैं परमेश्वर हमारा प्रयोग करता है, जब विश्वास से किसी बीमार व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो वो चंगा हो जाता है। Time and again I've seen it in my life, my ministry. भाई ने अपने सेवकाई में इसको बार-बार बात को देखा है। Now I'm not the healer. भाई तो चंगा करने वाले नहीं है। The Lord only heals. परमेश्वर ही चंगा करते हैं। But He will say, lay hands now. और परमेश्वर कहता है कि अपने हाथ रखा इन पे। We should be hasty in laying on of hands. Go by the leading of the Spirit. हमें जल्दबाजी नहीं करनी हाथ रखने पे, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ही चलना है। Once in a meeting, it was actually in Dubai, a friend of mine brought his friend who was not a believer. एक बार भाई दुबई में थे और एक मित्र था भाई का, वो एक व्यक्ति को लेके आया जो विश्वासी नहीं था। I was in a meeting. I was speaking in a meeting. और भाई एक सभा में बोल रहे थे। And this man who had a back problem was outside the hall. He didn't come inside. He was not a और विश्वासी नहीं था और व्यक्ति भवन के बाहर ही था, हॉल के बाहर ही था, वो अंदर भी नहीं आया था। His friend brought him for the meeting. His friend was a believer. और पर उसका जो मित्र था जो उसको लेके आया था वो विश्वासी था। After the meeting finished, this friend told me, I have a friend, I brought him for the meeting. Can you please come outside and pray for him? और जब सभा खत्म हुई तो भाई ने बोला, उस दोस्त ने भाई को बोला, मेरा एक दोस्त आया है, वो उसको कुछ समस्या है, क्या आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे? So I went out and a lot of people waiting for prayer. So I was led to lay my hand upon him and I put my hand on him and said, Lord Jesus, please heal him of his backache. बहुत से लोग इंतजार करते कि भाई प्रार्थना करें उनके लिए भी। तो भाई जब गए तो उनको भाई ने उसके ऊपर हाथ रख के बोला, प्रभु यीशु मसीह इसको चंगाई दे। I didn't even know his name. He had a problem. I was focused on the problem, not on the person. So I said, Lord, he's got a problem. Heal him, Lord. And I went to the next person. और भाई को तो उसका नाम भी नहीं पता था, समस्या पता थी, कमर में दर्द है। भाई ने बोला, प्रभु इसके चंगाई दे, चलेंगे। Next person, this man got offended. और जब आगे चले गए तो इस व्यक्ति को बड़ा गुस्सा लगा, बुरा लग गया। Rajkumar did not pray properly. कि राजकुमार ने भाई ने जो है सही रीति से प्रार्थना नहीं करी। Very short prayer he prayed. छोटी सी प्रार्थना करके चला गया। He didn't talk to me. He didn't listen to my problem. उसने मेरी समस्या को सुना भी नहीं ठीक से। His friend told me he's got a back problem. That I knew. He had a back problem many years. और उसके दोस्त ने बता दिया था भाई को कि इसको कमर का दर्द है और कई सालों से है। This man got offended. और इस व्यक्ति को बड़ा बुरा लगा। But then he got healed. वो चंगा हो गया। Immediately he got healed. उसी क्षण वो चंगा हो गया। He didn't tell me. उसने इस बात को बताया नहीं भाई को। 2 weeks later, he came for another meeting. There he told me, brother, that day you prayed, I got very offended, but I got healed. और 2 हफ्ते के बाद दूसरी सभा में भाई जब बोल रहे थे, वहां आया, बोला भाई उस दिन आपने मेरे लिए प्रार्थना करी, मुझे बड़ा बुरा लगा था उस बात से और मैं चंगा हो गया। I was thinking that backache will come back, so I waited for 2 weeks. Now I've come back after 2 weeks. It's gone completely. कि मैं 2 हफ्ते इंतजार करता रहा, शायद वो दर्द वापस आ जाएगा, पर अभी तक वो दर्द नहीं आया, पूरी तरह से मैं ठीक हो गया। He was trying everything possible to get back the backache. He was doing like this. It didn't come back. वो सारे प्रयास कर रहा था, हिल डुल रहा था कि किसी तरीके से शायद वो दर्द वापस आ जाए। But the fact is, the healer is Jesus, not you and me. पर तो सत्य बात तो यह है कि चंगाई करने वाला तो आप और मैं नहीं, परमेश्वर खुद है। So don't be surprised when people are sick. As you say, lay hand, Lord. You have said in your word, Mark 16:18, believer lay hands upon sick, they'll be healed. I'm a believer, heal him, Lord. पर हमें जो है परमेश्वर की वचन से मिला हुआ है कि विश्वासी लोग जब चंगाई दूसरों बीमार लोगों पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, विश्वास से तो चंगे होंगे। इसलिए विश्वास से बोलो, प्रभु इस कर दे।
So God used the hands for even physical healing or mental healing or emotional healing of people. और परमेश्वर हमारे हाथों का प्रयोग कर सकते हैं कि हम उनकी शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई, आत्मिक चंगाई के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं. The third area of hands being used is for the anointing of the Holy Spirit. और तीसरे जगह जहां पवित्र आत्मा जी हम अपने हाथों को प्रयोग कर सकते हैं, वहां हम पवित्र आत्मा जी के अभिषेक के लिए. When Philip went to Samaria, he shared the word of God. Miracles happened. People became believers. और जब फिलिप सामरिया को गया, उसने वहां पे लोगों के ऊपर हाथ रखा, वचन दिया और उन पे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला. No, they first accepted Christ. They got baptized in water. यस सर. उन्होंने विश्वास किया और पवित्र मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया और बपतिस्मा लिया. When the church in Jerusalem realized that they received the word of God, they born again, and they got baptized in water also. और जो यरूशलेम में लोग थे, उन्होंने देखा कि भाई इन लोगों ने विश्वास किया है, अब इन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया है. They sent Peter and John. उन्होंने फिर पतरस और यूहन्ना को वहां भेजा. To Samaria. समरिया को भेजा. For what? किस लिए? For them to lay hands upon the Samaritans and for them to accept, for them to be filled with the Spirit. कि वो उन सामरी लोगों ने जिन्होंने विश्वास किया है, उनके ऊपर हाथ रखे और वो पवित्र आत्मा जी से भर जाए. Acts 8:17 talks about that. पवित्र काम 8:17 इस बात को बताता है. Peter and John went there, lay hands, and they got anointed in the Spirit of God. पतरस और यूहन्ना वहां गए, उन्होंने हाथ रख के उन पे प्रार्थना करी और उन्होंने पवित्र आत्मा पा भी लिया. In fact, there was a sorcerer there who, when he saw that the Spirit was given by the laying on of hands, he wanted the same power. I also want that power. I want to lay hands for people to be healed. और वहां एक जादू टोना करने वाला था व्यक्ति शिमोन. उसने देखा कि भाई ये कैसे पवित्र आत्मा इनको मिल गया, तो वो भी बोलने लगा, मुझको भी ये दान दे दो, मुझे भी ये पवित्र आत्मा चाहिए. ऐसे मांगने से नहीं मिलता, ये परमेश्वर का दान है. The same when Paul went to Ephesus, earlier Apollos had been there. और फिर पौलुस जब इफिसुस को गया, जहां पे अपोलोस पहले ही था. And when he goes there, he asked them, did you receive Holy Spirit when you believed? Acts 19, chapter verse 6. और फिर तो काम 19 में अध्याय 6 आयत में वो पूछता है कि क्या तुमने विश्वास किया, तुमने पवित्र आत्मा पाया? They have not even heard of the Holy Spirit, they say. उन्होंने कहा हमने तो इसके बारे में सुना भी नहीं है. And Paul laid hands upon them. There were 12 people, and they were all filled with the Holy Spirit. और पौलुस ने उनके ऊपर हाथ रखा, वो 12 लोग थे, वो सब के सब पवित्र आत्मा जी से भर गए. Again, there's nothing in our hands. It is just that it is God's grace, and He is the one who does. The Lord Jesus Christ anoints us with the Holy Spirit. No human being. और ये हमारा इसमें हमारा आपका कोई योगदान नहीं है. ये पवित्र आत्मा जी के जो है परमेश्वर की ओर से ये पवित्र आत्मा जी का अभिषेक मिलता है. Also, laying on of hands is important for commissioning people for the ministry. और दूसरे सेवकाई जो हाथ रखने की वो ये है कि जब लोगों के ऊपर हाथ रख के उनको सेवकाई के लिए सुपुर्द करना. 13th chapter of Acts, we read about how in Antioch they were all worshiping God and fasting. और फिर तक 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे अंताकिया में वो लोग उपवास रख के प्रार्थना कर रहे थे. The Holy Spirit said, set apart for me Paul and Barnabas for the work to which I have been called them. और पवित्र आत्मा जी परमेश्वर ने बोला कि पौलुस को, पतरस को और बरनबास को, शिमोन को और बरनबास को मेरे लिए अलग से कर दो कि वो मेरी सेवकाई में जाए. Then after they fasted and prayed, और फिर जब उन्होंने उपवास रख के प्रार्थना करी, they laid their hands upon them and sent them off. उन्होंने उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी और उनको सेवकाई के लिए आगे भेज दिया. It's very important to remember that there's nothing great about the hands of a believer. Are you able to hear me, brother? Yes, could not get you. There's nothing great about the hands of a believer. It's just that God says something, do you do it? That's all. अच्छा, ये विश्वासी के हाथ में कोई ऐसा हुनर नहीं है. जो परमेश्वर कहता है ये करो तो हम करते हैं. It's like the Lord telling Naaman through Elisha, dip 7 times in the River Jordan. तो जैसे नमान को एलिशा ने बोला कि जाके उस झील में 7 बार डुबकी लगा. River Jordan. जर्दन नदी में 7 times. 7 बार. No, Naaman could have asked, why not? Why 7 times? Why not 6 times? Why not 8 times? Why not 2 times? They could ask, but God says 7 times, 7 times. और नामान बोल सकता था 1 बार, 2 बार, 3 बार, क्यों नहीं 7 बार क्यों? पर परमेश्वर ने बोला 7 बार तो 7 बार डुबकी लगानी है. Why not Abana and Farfar, rivers of Damascus? Why River Jordan?
कि दमिश्क में तो अबाना और फरफर नदियां हैं, इतनी भी अच्छी नदियां हैं, ये यर्दन नदी में ही क्यों मैं डुबकी लगाऊं? That's not the point. Water is water. River Jordan is River Jordan. The point is what God says you do. और ये तो पानी तो उस नदी में और इस नदी में भी वही पानी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। बात है कि जो परमेश्वर ने कहा है वो करना है। So the Lord says your hands must be set apart for me, holy hands. I want to use your hands to do what I want to do. परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे हाथ जो है पवित्र हैं, अलग किए हुए हाथ है, और मैं उनसे तुम वो करो जो मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए करो। And by the way, laying on of hands is elementary teaching of the Bible. और हाथ रख के प्रार्थना करना जो है ये बाइबल की मुख्य शिक्षा है। It's not something only certain denominations do. और ये ऐसा नहीं कि कोई समूह, कोई तरीके के अलग विश्वासी लोग हैं वो ही ऐसा करते हैं, Or only bishop does, only archbishop does. या बिशप या आर्च बिशप ही ऐसा करे। Believers do. विश्वासी लोगों को करते हैं। And if you look at the 6th chapter of Hebrews, और अगर हम इब्रानियों के 6ठे अध्याय को देखें, the writer of the book of Hebrews is exhorting the recipients of the letter. और जो लेखक है वो इन पत्र जो पढ़ने वाले हैं उनको ऐसा बता रहा है, Let's leave the elementary teachings of Christ and go on to maturity. हम प्रभु की जो आरंभ की शिक्षा है उनको छोड़ के परिपक्वता की ओर जाएं। Elementary things they mentioned there. Let's leave these things and go on to maturity. और जो आरंभ की शिक्षाएं हैं वहां पे बताई गई हैं उनको छोड़ना है और आगे बढ़ना है। What are elementary things? और ये शुरुआत की शिक्षाएं क्या है? Repentance of acts that lead to death. ऐसे कामों से पछतावा करना जो मृत्यु की ओर लेके जाते हैं। Faith in God. परमेश्वर में विश्वास करना। Instructions about baptism. और बपतिस्मे की गवाही देना। Instructions about baptisms. और बपतिस्मों की शिक्षा। Interesting. Baptisms it says, not baptism. हाँ, वो बपतिस्मों का बारे में लिखा है, एक बपतिस्मा नहीं लिखा। Which means water baptism and Holy Spirit baptism. इसका मतलब पवित्र पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा जी का बपतिस्मा। Elementary teachings. आरंभ की शिक्षाएं हैं। Fourth is laying on of hands. और चौथा है हाथ रखना। Number 5 elementary teaching also eternal judgment. और आखिरी जो शिक्षा है वो है अंतिम न्याय की। And resurrection of the dead. और मरे हुओं में से जी उठना। Sorry, elementary teachings. ये सब आरंभ की शिक्षाएं हैं। Laying on of hands is considered elementary teaching in the first century. और हाथ रखना जो था ये आरंभ की शिक्षा मानी जाती थी शुरुआत की शताब्दी में। Today many churches considered to be solid food. और आजकल बहुत सी कलीसियां जो है वो बहुत चिंता करते हैं कि हमारे को जो है मजबूत खाना मिले। We have to understand it's God who does all these things. He only uses us when we obey Him in areas where He wants us to obey. हमें समझना चाहिए कि ये परमेश्वर ही है जो प्रयोग करता है और वो हमारे को दान देता है, हमारे को प्रयोग करता है जिस भी भाग में, जिस भी काम में वो हमारे को प्रयोग करना चाहता है। And therefore, let's understand that the hands with God wants to use for so many aspects of life and ministry. और हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर ने जो हमें हाथ दिया उसको हमें प्रयोग करना है। परमेश्वर की जो दुनिया बहुत सारी सेवकाइयों के जो हिस्से हैं उसमें हमें प्रयोग करना है। In John 14:12, Jesus says, यूहन्ना 14:12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, anyone who has faith in me will do what I've been doing. जो भी मुझ पे विश्वास करता है वो काम करेगा जो मैं वही करेगा जो मैं चाहता हूँ करे। He will do even greater things because I am going to the Father. और वो कहता है वरन इससे भी बड़े काम करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। Anyone who has faith in me, जो भी मुझ पर विश्वास रखता है, which means any believer. इसका मतलब कोई भी विश्वासी। And we only have to listen to the Holy Spirit at that time what He tells us to do and simply do it, and you will see before our very eyes God doing amazing miracles. तो परमेश्वर की हमें आज्ञा माननी है, जो भी काम हमसे कहता है हमें करने के लिए हम करें और हम अपनी आंखों से देखेंगे कैसे अद्भुत कार्यक्रम होंगे, कार्य होंगे। But we should not be hasty in the laying on of hands. There's a warning in the Bible. एक चेतावनी भी है बाइबल में कि हमें हाथ रखने में उतावली नहीं करना। And therefore, we must be led by the Spirit. At times, there are many ways by which God heals today, not only by laying on of hands. और हमें जो है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है और परमेश्वर बहुत तरीके से चंगाई देता है, सिर्फ हाथ रखने से ही नहीं। Always it's Jesus who's the healer. ये प्रभु यीशु मसीह ही है हर समय जो चंगाई करते हैं। There are many ways by which He healed in the first century. There are many ways by which He heals even today. और पहली शताब्दी में बहुत तरीके से प्रभु चंगाई देते थे और आज के समय में भी बहुत तरीके से चंगाई देते हैं। By the way, someone asked a question: does Jesus even now heal? Is He the healer?
और भाई से एक भाई ने किसी ने पूछा प्रश्न कि क्या प्रभु यीशु मसीह अभी भी चंगाई देते हैं, अभी भी वो चंगा करने वाले हैं? Do healings take place even today? क्या आज के समय में भी चंगाइयां होती हैं? 2 verses explain that very clearly. और वहां पे दो बातें हैं, आयतें हैं जो बड़ी सफाई से बताई गई हैं। Acts 9:34, प्रेरितों का काम 9वां अध्याय उसकी 34वीं आयत, where Peter tells Aeneas, who was a paralytic for 8 years, और पतरस जो है अनियास से कहता है, जो कि 8 साल से लकवे का मारा हुआ था, Aeneas, Jesus Christ heals you. वो कहता है एनियस, प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करते हैं। And he gets up from the mat and is healed. और वो अपने बिछौने से उठ गया और वो चंगा हो गया। Who heals? Jesus Christ heals you. और किसने चंगा किया है? कि प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करता है। Next verse is Hebrews 13:8. और दूसरी आयत है इब्रानियों 13वां अध्याय उसकी 8वीं आयत, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। And therefore, he healed yesterday, he'll heal today, he'll heal tomorrow. तो वो प्रभु यीशु मसीह ने जो पहले चंगाई, कल चंगाई करी, आज कर रहा है, वो आज भी वही चंगाई करता है। And amazingly, he uses mere Christians like you and me. और बड़ी अद्भुत बात है कि वो इस काम के लिए आप और मेरे जैसे साधारण विश्वासियों का प्रयोग करता है। Believers shall lay their hands on the sick and they shall be healed. When God says they shall be healed, they will be healed. Period. Mark 16:18. और मरकुस 16:18 के अनुसार प्रभु ने कहा, जब तुम विश्वासी किसी बीमार आदमी पे हाथ रख के प्रार्थना करेंगे वो चंगा होगा, और वो चंगे हो जाते हैं। सीधी सी बात। And therefore, we must be very, very sensitive to the leading of the Holy Spirit and obey Him in every area of our lives. और हमें बहुत ज्यादा हमारे को तैयार होना चाहिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए, और जहां कहीं वो हमें लेके जाता है हमें वहां जाने के लिए तैयार होना चाहिए। And consciously offer every part of body to God, especially hands, in the context of working in the world, in the secular field. I shouldn't use the word secular. Secular means non-sacred. In the professional field, also in the kingdom of God. और हमें जो है परमेश्वर ने जो जिस जगह पे रखा है, जिस काम में भी हमें रखा है, उस काम में हमारे को अपने हाथों को बड़ी निपुणता से परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को प्रयोग करना है, अपने हाथों को खासकर। He wants to bless the works of our hands. परमेश्वर चाहता है कि हमारे हाथों के कामों को वो आशीष दे। Whatever work we do, चाहे हम जो भी काम करें, we are called to bear fruit in every good work. हमें बुलाया गया है कि हम हर भले काम में फलवंत हों। Bearing fruit is to be successful in whatever you do. और फल लाने का मतलब कि जो भी काम हम करते हैं उसमें हम सफल हो। Now, success in God's kingdom is doing 100% of what God wants us to do. और परमेश्वर के राज में सफल होने का मतलब है जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया उसको हम पूरा करें। We are all called to do good works after receiving salvation. उद्धार पाने के बाद हम सबको बुलाया गया है कि हम भले काम करें। Ephesians chapter 2 verse 10 talks about that. इफिसियों 2:10 इस बात को बताता है। We are God's workmanship created in Jesus Christ to do good works. कि हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं और हमें सृजा गया है कि हम परमेश्वर के लिए भले काम करें। And John 15:16 says we are called to bear fruit in what we do. और यूहन्ना 15:16 में लिखा है कि हमें बुलाया गया कि जिस काम में बुलाया गया हम फलवंत हो। What have He chosen us for? We are called to bear fruit. John 15:16. यूहन्ना 15:16 जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है उस काम में हम फलवंत हो। Put them both together. Good works, bearing fruit. We are called to bear fruit in every good work. और इन दोनों को हम एक साथ मिल लेके पढ़ें कि हमें जो है जिस काम के लिए बुलाया गया हमारे को अच्छे फल लाने के लिए बुलाया गया। And as we choose to be friends of Jesus, we'll bear fruit. और जब हम चुन लेते हैं, चुनाव कर लेते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का मित्र बन के रहूंगा, तो हम जो है फलवंत होने लगते हैं। One condition for bearing fruit is being a friend of Jesus. John 15:15 being friend, John 15:16 bearing fruit. और ये जो हम बात देखते हैं कि ये फलवंत होने के लिए कि एक शर्त है, वो है प्रभु यीशु मसीह का हमें मित्र होना। यूहन्ना 15:15 में हम उसके मित्र होते हैं और 15:16 में हम पढ़ते हैं कि हम फलवंत होते हैं। And as we become His friends, we will receive His instruction, His counsel, and His wisdom. और जब हम उसकी आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर हमारे को अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी निपुणता में देते हैं। With this wisdom, we can be filled with the knowledge of His will. और परमेश्वर की बुद्धि से हम परमेश्वर की मनसा क्या है, इच्छा क्या है, उससे हम जान सकते हैं। And that's conditional for bearing fruit in every good work we do, also with our hands. और ये पहली शर्त है कि जो हम काम करें उसमें सफल होने के लिए पहली शर्त है। In Colossians chapter 1 from verse 9, Paul writes, कुलुस्सियों पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत से आगे पौलुस लिखते हैं, since we heard about you, we will not stop praying for you.
और जिस दिन से मैंने हम ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने से, विनती करने में नहीं चूकते, asking God to fill you with the knowledge of His will through spiritual wisdom and understanding. कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान समझ सहित परमेश्वर की इच्छा को पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। I mean, by this you may live lives worthy of God, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, pleasing Him in every way, और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, bearing fruit in every good work. Look at the amazing outflow of our relationship with God. और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। और ये हम देखते हैं कितना जब परमेश्वर के साथ हमारी मित्रता, घनिष्ठ रिश्ता होता है, कितनी आशीष हम में से निकलती है। For that every faculty we have, our eyes, our ears, our tongues, our mind, our hearts, our feet, our hands, all be consecrated for the service of God. और उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर का हर अंग, हमारी आंख, हमारे कान, हमारी जुबान, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा मन, हमारा हृदय सब प्रभु के लिए अभिषिक्त हो। Like a small incident is symbolic. The little boy who gave 5 loaves of bread and 2 fish. और एक उदाहरण देखेंगे, एक छोटा सा उदाहरण है कि एक छोटा लड़का जिसने 2 मछली और 5 मछली, 2 रोटी 5 मछली जिसके पास से उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दी। With the hands he gave. और अपने हाथों से उसने दी। To whose hands? किसके हाथ में दी? Jesus' hands. प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दी। What happened? उसका परिणाम क्या हुआ? It multiplied. वो बहुत बढ़ गई। So whatever God gives us, तो जो भी प्रभु हमें देते हैं in our hands, हमारे हाथों में, we give to God for His glory, हम प्रभु के महिमा के लिए उसको उसके हाथ में सौंप देते हैं, and to people also. और लोगों को दे देते हैं। The thing God gives us, He gives away. We give away. और जो परमेश्वर हमें देता है हम दूसरों को बांट देते हैं। In look at 2 Corinthians 9:10, it's written. 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, When we share the word of God, we are like sowers. In the hand we have seed, we sow the seed in the hands. और जब हम परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो हम एक तरह से उस बीज बोने वाले के तरह हो जाते हैं। You supply seed to the sower and bread for food will supply increase the store of seed. तो जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। A farmer has seed in his hands. He sows the seed, he gets more seed. The more you sow, the more you get. एक किसान जो है बीज बोता है, जितना वो बोता है उतना ही फल उसको मिलता है। So with the hands, we should learn to give. तो हम अपने हाथों से हमें सीखना चाहिए कि हम देना सीखें। Holy hands give. जो पवित्र हाथ हैं वो देते हैं। Give to God, परमेश्वर को दे, give to people. लोगों को दें। We give to God what He's given us, offer ourselves to Him, like the little boy giving 5 loaves of bread and 2 fish. जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हम दें, जैसे वो छोटे लड़के ने 2 रोटी 5 मछलियां उसके पास थी वो दे दी प्रभु यीशु मसीह को। And what God gives us also we share with people. और जो परमेश्वर हमें देता है वो हम लोगों के साथ भी बांट देते हैं। May God bless us as we consecrate our entire body for the service of God. परमेश्वर हमें आशीष दे जब हम पूरे देह को अपनी परमेश्वर की सेवकाई के लिए सुपुर्द कर देते हैं। God bless us all. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।